Welcome to class 9. I am here to discuss about the French Revolution. As you know that some part of it I already taught you in earlier online class. Once again I am also revising it and also discussing some other important points with regard to French Revolution. We are going to discuss about the factors that are responsible for the outbreak of the revolution. We have categorized all the factors under different terms. So first of all, it is about political conditions of France. And here in political conditions, we are referring to monarchy system in France. Monarchy means Rajtantra. You should know that Louis XVI, when the revolution broke out, Louis XVI, he was the monarch of France. He became the king of France at the age of 20 years. He was married to Austrian Princess Marie Antoinette. He was an absolute monarch. Absolute monarch means he could not accept any challenge. He could not tolerate any opposition. He did not like any criticism. He was called an absolute monarch and could not tolerate any criticism or complaints from his subjects. Even in time of economic and social crisis, he ruled over people on the theory of the divine rights of king. Divine rights of king, it means to say that the king ruled over the people on the theory that he was sent by God on this earth. He was a representative of God on this earth. So, people had not elected him, made him the king. He was elected by the God. So, people did not have the right to question his deeds, his order. He was an absolute monarch. He used to say to the people that he was an incarnation of God. मान भगवान का वो प्रतिमूर्ति है on the earth. He lived a lavish and luxurious lives in the renowned palace of Versailles. वर्साई के एक जबरदस्त महल में वो काफ़ी खर्चीला और ये जीवन व्यतीत करता था. Even in the midst of political and economic hardship in France, he continued to live an extravagant life and totally ignored his hungry and impoverished subjects. On one side, people of France were starving, they were hungry, they were starving to death, and he continued to live a luxurious and stylish life. He totally ignored the welfare, the interest of the people. Now, when hungry mob asked for food, they were mocked and fired upon by the king's army. When people demanded from the king for food, not giving the food, they were mocked, they were made fun of, and even the king ordered his army to fire upon these people. So you can conclude that how when a guardian used to behave like this, when the king, when the ruler who had the morality, who had the right to look after the visage, to look after the welfare of the people, and if he started behaving like this, how the people, for how long the people could keep quiet? For how long the people could respect the king? A time would come when the anger, when the resentment of the people would burst against the king. Next factor, we are going to take it under a social cause. France before the revolution is referred to as the old regime of France.
यानी बिफोर द रिवॉल्यूशन द सिस्टम दैट प्रिवेल्ड इन फ्रांस वाज रेफर्ड टू एज ओल्ड रीजिम, इसको पुरानी व्यवस्था कहा गया। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट्स थे समाज में। फर्स्ट स्टेट्स दैट इंक्लूडेड क्लर्जी, officials and staffs of churches were called clergy. Second states, they were nobility, they were landlords, they were feudal. And the third states included first big and rich traders and merchants, court officials, lawyers. Next, in third states that included peasants and artisans. And at the bottom of the society, in the third states, there were small peasants, landless laborers, servants. It means to say that these were the three types of people who lived in French society. Now, peasants formed about 90% of the population, but only a few of them had their own land on which they cultivated. However, there were 90% of farmers of the total population, but only a few of them had their own land to cultivate. About 60% of the land was owned by nobles, who were the feudals, the church, and other richer members of the third states. The members of the first and second states enjoyed certain privileges based on birth. They were given some extra powers. The first and second state enjoyed some privileges, some special facilities in the society from the time immemorial. What were those privileges? The members of the first states, they were exempted from paying any taxes to the state. वो राजा को कोई कर नहीं देते थे. The church extracted a tax called tithes from peasants. There was a particular type of tax called tithes. Church collected this tax from the members of the third states. The nobles held power to enforce peasants in their services without any returns. The peasants, yani it means to say that the members of the third states had to work for the nobles free of any wages. If any road was to be constructed, any canal was to be made, if the farming was to be done in the nobles' lands, these members of the third states had to provide their services free of cost. The members of the third states were overburdened with taxes. In this way, you can see that the member of the third states, they had to pay so many taxes. They had also to pay taxes, extra taxes either to the nobles, to the churches. They had also to provide their services free of cost to the members of the first and second states. Now you can see the status and position of the members of the third states in French society. These members had to pay regular taxes, a direct taxes called taille, T-A-I-L-L-E, taille, and a number of indirect taxes imposed on articles of everyday consumption like salt or tobacco. It was, you can see that there were so many taxes. Other than this, they had also to provide their services free of cost. So, in this way, you can see that how French society in the old regime was based on discrimination, exploitation and injustice. इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्रांस का जो समाज था वो किस तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पर आधारित था, शोषण पर आधारित था, अन्याय पर आधारित था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो समाज इस तरह की खासियत हो तो समाज कितने दिन तक जो है वहाँ के लोग खुश रह सकते हैं। तो बहुत दिनों तक उनके रिजेंटमेंट को, उनके गुस्से को क्रश करना आसान नहीं था।
अब हम तीसरा फैक्टर्स के बारे में यहाँ बता रहे हैं, थर्ड फैक्टर, दैट इज अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे की बात है। अपॉन हिज सक्सेशन, लुई 16 जब राजा बना था तो ही फाउंड द ट्रेजर ऑफ फ्रांस एम्प्टी। राजा बना तो उसने फ्रांस का खजाना जो है बिल्कुल खाली पाया। इसके कारण थे, देयर वर सेवरल रीजन्स। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस जो था हमेशा कभी न कभी किसी से लड़ाई लड़ता, चाहे वो अपना पड़ोसी देश ये इंग्लैंड हो, जो उसका ट्रेडिशनल और आर्च राइवल्स था, हमेशा लड़ाई लड़ता था। एंड इट वाज आल्सो इन यूरोप, फ्रांस कंटिन्यू टू, so because of this long wars, the resources of France also drained out so much. Louis XVI wholeheartedly supported and financially aided the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. In the meantime, the 13 colonies in America were fighting for liberation against Britain. And since Britain was the traditional and arch rival of France in Europe, so Louis XVI got an opportunity where he could use these 13 colonies and help them in defeating England in America. So he wholeheartedly, financially, physically, he helped the 13 colonies. This was also a cause for the financial condition, for the poor financial condition of France. France was burdened with a debt of more than 2 million livres. Livres, it was a currency of France in old regime. ये फ्रांस की करेंसी का नाम है लाइवर्स। तो अभी तब तक जो फ्रांस पर जो है 2 मिलियन लाइवर का कर्ज जो है फ्रांस के ऊपर था। The huge cost of maintaining an extravagant court at the Grand and Grandeur Palace at Versailles. इसके अलावे फ्रांस में लुई 16 का जो राजमहल था, जो अपनी वैभव, अपने ग्रैंडनेस, अपने ग्लैमर, अपने ग्रैंडियर के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता था, वहाँ बेतहाशा पैसा जो है खर्च होता था। इस कारण भी जो है फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन जो था वो काफ़ी दयनीय हो गई थी। लुई 16 के इस वजह से खजाना तो खाली था, द ट्रेजर वाज क्वाइट एम्प्टी, बट लुई 16 हैड ए नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्चा तो उसके पास बहुत ज़्यादा, पैसा था नहीं या खर्चा ज़्यादा था। क्या कहा, जैसे कि जो मुख्य खर्चा थे, टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन्स एट 10% लेन, यानी कि 2 मिलियन लाइवर्स का जो कर्ज था उस पर 10% के हिसाब से उसको ये देना पड़ता था इंटरेस्ट, यानी बजट का एक अच्छा हिस्सा। आउटस्टैंडिंग पार्ट ऑफ हिज बजट वाज टू बी मेड टू पे इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, इतनी बड़ी सेना थी, उसका सेना का खर्चा, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज़, ये बहुत सारी खर्चा था जिसके लिए फ्रांस के पास, लुई 16 के पास पैसे की कमी थी। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो गया पाकिस्तान फ्रांस के लिए। अब है सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या है सबसिस्टेंस क्राइसिस? का एक डिफिनेशन है, इट इज़ कॉज्ड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स, जनरली हाई फूड प्राइसेस। सबसिस्टेंस क्राइसिस की स्थिति तब आती है जब खाद्य पदार्थों की, खाने की चीज़ों में काफ़ी मूल्य बढ़ जाता है, विच इन टर्न मे बी कॉज्ड बाई आइदर नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स। और खाने पीने के चीज़ों में कीमत बढ़ने के कारण जो होता है, या तो नेचुरल हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल में जैसे कि कोई ड्रॉट आ गया, फेमिन आ गया, जिससे अनाज नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है। और मैन मेड में होता है कि लोग जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो अगर प्रोडक्शन कम होता है तो सप्लाई कम कर देते हैं बाज़ार में, जिससे डिमांड प्राइस जो होता है आगे बढ़ जाता है खूब ऊपर। तो उस तरह से नेचुरल और मैन मेड विच थ्रेटन्स द फूड सप्लाई, जिससे फूड सप्लाई प्रभावित होता है, एंड द सर्वाइवल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और जिससे कि अधिकांश लोगों का जीवन जीने का जो
अंदाज़ा होता है वो बिल्कुल उदासीन हो जाता है। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस से जूझ रहे थे। पॉपुलेशन, तो फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे आया? पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रू रैपिडली। 1789 आते नाते फ्रांस की आबादी जो थी वो 28 मिलियन हो चुकी थी। लगभग हम कहेंगे तो 3.25 करोड़ की आबादी थी फ्रांस की। दिस लेड टू हायर डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। आबादी बढ़ी, पॉपुलेशन ग्रो, सो द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स वुड आल्सो नेचुरली ग्रो। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, उस आबादी के हिसाब से फ्रांस में फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, इसीलिए वहाँ प्राइस ऑफ ब्रेड, रोटी, विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी, जो लोगों का, वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन था। आटा से वहाँ रोटी बनता था और वह रोटी जो है दुकान में बिकता था और वहीं लोग खाते थे। तो मेजॉरिटी रोटी की कीमत जो है काफ़ी बढ़ गया। वेजेज ऑफ लेबरर्स आल्सो कुड नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू प्राइस राइज ऑफ ब्रेड। इसके अलावे जो वहाँ के मजदूर थे, जो वहाँ के निर्धन किसान थे, गरीब किसान थे, भूमिहीन किसान थे, उनकी मजदूरी जो थी उस हिसाब से नहीं बढ़ी ताकि लोग ब्रेड जो है आसानी से खरीद सकें। इसलिए और भी जो है उनको दिक्कत हुआ, उनका मजदूरी नहीं बढ़ा, उनका वेजेस नहीं बढ़ा। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन एवर ड्राउट और हेल डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स एंड द सिचुएशन बिकेम मोर ग्रेव, वर्स व्हेन द फूड ग्रेन was destroyed by any drought और any hailstorm। या कभी बर्फबारी हुई, कभी सूखा पड़ गया, उस चलते जब भोजन अनाज जब खेत में ही ख़त्म हो जाते थे, उस समय महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी और लोगों के खाने के लाले पड़ जाते थे। सच सिचुएशन, और इस तरह की स्थिति ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रीजन। और ये स्थिति जो थी, इस तरह की स्थिति सबसिस्टेंस क्राइसिस का, कि जब लोगों के पास भूखे मरने के अलावा और कोई नहीं रास्ता था, ये सबसिस्टेंस क्राइसिस है। इस तरह की स्थिति जो थी फ्रांस में हमेशा आते रहती थी। इसी तरह से अब पांचवा जो फैक्टर्स है वो राइज ऑफ मिडिल क्लास। इसी समय फ्रांस में एक मिडिल क्लास का जो है इमरजेंस हुआ। पीजेंट्स एंड वर्कर्स रोज अप इन रिबेलियन अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। पीजेंट्स और लेबरर जो थे, रोटी की कीमत में बड़ी वृद्धि हुई, टैक्सेज में जो वृद्धि होती थी, इससे समय समय पर दे रोज अगेंस्ट द किंग, बट देयर रिवोल्ट्स वेयर स्पोरेडिक। लेकिन उनका रिवोल्ट जो होता था वो तितर बितर होता था, लोकलाइज्ड होता था एंड अनऑर्गेनाइज्ड, और उसका कोई लीडर्स नहीं हुआ करता था। इसीलिए दे वेयर क्रस्ड very easily and they could not have any impact on the king, on the system. So their grievances, their complaints were never heard or redressed. But now a group emerged in the third state. लेकिन अब एक ग्रुप सामने आया थर्ड स्टेट में, who had become prosperous, जो अब काफ़ी पैसे वाले हो चुके थे, and had access to education, जिनके पास शिक्षा भी थी, जिनके पास नए नए विचार थे। दिस ग्रुप्स ऑफ पीपल, जिनमें मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, लॉयर्स थे, ऑफिशियल्स, इनका विश्वास था कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये इस चीज़ ये दे कुड नेवर टॉलरेट दैट ए पीपल रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन सोसाइटी शुड बी नोन बाय हिज बर्थ इन ए पार्टिकुलर स्टेट। कि कोई व्यक्ति इस स्टेट में जन्म लिया है, उसके चलते उसका सम्मान, उसका महत्व समाज में रहे, उसको कुछ अधिकार मिले, ये सरासर गलत है, ये बर्दाश्त नहीं था। दे आर्ग्यूड, उनका तर्क था कि ए पर्सन सोशल पोजीशन, पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का जो सामाजिक स्थिति है, मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, उसकी योग्यता पर होनी चाहिए, न कि वो किसी खास जाति में पैदा लिया, किसी खास धर्म पर पैदा लिया है, वो उसके
सामाजिक सोशल पोजीशन का आधार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरासर गलत है। दे गेव द विजन ऑफ ए सोसाइटी, उनके अनुसार सोसाइटी कैसा होना चाहिए, बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। उनके लिए ये था कि समाज में सबको आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए और सबके लिए समान अवसर और कानून होने चाहिए। आइडियाज ऑफ सम पीपल ऑफ दिस ग्रुप्स हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन माइंड्स ऑफ थर्ड स्टेट्स, और थर्ड स्टेट्स के लोगों पर इसका ज़बरदस्त असर पड़ा था। इसमें से जो कुछ जो फिलोसफर्स थे, जो कुछ लीडर्स थे मिडिल क्लास में, उनका नाम था, एक थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने अपनी किताबें लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एक किताब लिखे थे। उसमें ही सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द किंग। इस किताब के जरिए उन्होंने राजा के डिवाइन राइट को, दैवीय अधिकार का जो सिद्धांत था, और राजा का जो एब्सोल्यूट राइट था, जो डिक्टेटरशिप था, उस पर उन्होंने ज़बरदस्त प्रहार बोला था और इसको गलत बताया था। उसी तरह से जीन जैक्स रूसो थे एक दूसरे, उनकी जो किताबें थी सोशल कंट्रैक्ट नाम की, प्रोपोज्ड ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए सोशल कंट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। उनका कहना था कि समाज में जो होना चाहिए, जो राजा हो, जो शासक हो और जो प्रजा हो, इन दोनों के बीच में एक कंट्रैक्ट होना चाहिए, और वो कंट्रैक्ट राजा का प्रजा के साथ और प्रजा का राजा के साथ, और इसको तोड़ना नहीं चाहिए। दोनों को अपने अपने कंट्रैक्ट के अनुसार काम करना चाहिए। एक तीसरे थे मॉन्तेस्क्यू। मॉन्तेस्क्यू ने भी अपनी एक किताब लिखी थी जो काफ़ी फेमस हुआ था क्रांति के दरमियान, इन द स्पिरिट ऑफ लॉज। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज ही प्रोपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उन्होंने राजा जो है डिक्टेटर नहीं बन जाए, द किंग कुड नॉट बिकम ए टिरैन, ए एब्सोल्यूट, सो ही वांटेड डिवीजन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट। वो सरकार के पावर को पावर शेयरिंग करना चाहते थे, बांटना चाहते थे 3 अंग में। उनका अलग अलग, उनका कहना था कि लेजिस्लेटिव पावर अलग हो, एक्जीक्यूटिव पावर अलग हो, जुडिशियरी अलग हो। लेकिन अभी ये क्या था, ये सारे पावर जो थे राजा में निहित थे। ये सारा राजा कानून बनाता था, राजा जो है जो कानून नहीं मानता था उसका फैसला भी करता था, और राजा जो था कानून का पालन भी करवाता था। यानी एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सब कुछ था। इसीलिए किंग जो था वहाँ डिक्टेटरशिप था, वहाँ पर जो मनमाना था, टायरेनी रूल था। तो इसलिए इस तरह के व्यवस्था को तोड़ने के लिए उसने ये काम किया। आज बस इतना ही। और ये जो नोट्स बुक में मैंने लिखवाया उसी को मैंने समझा भी दिया, पढ़ा भी दिया था। अब हम समझते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड you can frame the questions on your own and you should write the answers in your own words. Thank you. Have a nice day.